چلیں جی سامنے سب پریکٹس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض. فأراد أن مغفرة. فأراد أن يستفزهم من الأرض. فأراد أن يستفزهم من الأرض. فأغرقناه ومن معه جميعا. فأغرقناه ومن معه جميعا. ومن معه جميعا. ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ہاں وقلنا بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اور من بعدہ اس کو لمبا کریں گے 2 حرکات، اور اسرائیل نہیں، اسرائیل. دوبارہ پڑھیں. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. شاباش. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ذرا heavy کریں. وعد الآخرة. وعد الآخرة. چلے جی. فأراد أن يستفزهم، فأراد کون سی مدوری ہے؟ مد متصل. ہے نا. فأراد الف مدہ کے بعد دال متحرکہ آ رہا ہے. سمپل مد اصلی ہو رہی ہے. کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی مد اصلی. مد اصلی. لیکن اگر میں نے یہاں پہ وقف کر دیا تو کون سی مد بن جائے گی؟ مد لازم. لا لا نہیں مد نہیں 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 مد یہ سکون عارضی. سکون عارضی والی مد کیا ہو؟ کون سی ہوتی ہے سکون عارضی والی مد؟ سکون عارضی والی میم یاد نہیں آ رہا. بہت سامنے رکھ لیں نا، نوٹس اوپن کریں. شاباش، نوٹس اوپن کر کے سامنے رکھ لیں. جب تک یاد نہیں ہوتے تب تک دیکھ کے بتا دیں. اس طرح یہ ہوگا عملی تطبیق کرنا آ جائے گی. کھولے نوٹس. جی میم کھول رہی ہوں. چلیں بتائیں. سکون عارض والی حرف مد کے بعد سکون عارض آ جائے تو کون سی مد ہوتی ہے؟ بتاؤ. جی جی بتائیں. مد عارض وقفی. مد عارض وقفی. شاباش. يستفزهم من الارض فاغرقناه. اگر میں نے یہاں پہ وقف کر دیا میں بتاؤں. بتا دیں. جی مد عارض وقفی یہاں پہ بھی کیونکہ وقف مد بتا رہے ہیں نا. جی. ومعه ہو پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہ بھی مد اصلی ہے. مد اصلی ہے. شاباش. پھر وقلنا من بعده لبنی، بنی پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ ہاں یہ مد فرعی ہے. مد فری کی کون سی قسم ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے. یہ مد منفصل ہے. مد منفصل. اسرائیل، رائیل حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمہ میں. یہ مد متصل ہے. مد متصل. ٹاپک یاد ہو نہ ہو لیکن آپ نے اپنے سامنے کھول کے رکھ لینا، ایزی ہو جاتی ہے عملی تطبیق کرنا. ٹھیک ہے، ورنہ اگر صرف ایسے بیٹھے رہیں گے تو صرف تلاوت تھوڑی نہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی یاسمین. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. على مكث. ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يتلى عليهم. يتلى عليهم. ٹھیک ہے. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك وما پہ وما أرسلنا دو ہر اس کو مد مد منفصل. مد منفصل ہاں اگر وما پہ وقف کر دیا تو مد عارض. نا مد اصلی. او سوری ہاں مد اصلی سوری میں ادھر ہاں دیکھ سوری. أرسلناك وقف کیا تو ارسلنا مد میں ابھی بتا میرے نام سے کیا ہو گیا ایک دم مد یہاں پہ وقف کریں گے تو مد عارض مدارس. مدارس کی کون سی قسم؟ فرعی ہاں مدارس کی کون سی ٹائپ؟ مدارس وقفی یا مدارس لین؟ وقفی وقف وقفی. ہوگا نا. شاباش. اگر ملا کے پڑھیں گے مطلب وقف نہ کیا ارسلنا کا الا تو پھر ناوے کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد اصلی. مد اصلی. شاباش. وقرآن فرقناه وقف کیا تو یہاں پہ بھی مد عارض فرعی ہاں وقف مدارس وقفی. اور اگر وقفی ملا مد کے پڑھ دیا تو اگر تو نا کے اوپر اصلی مد. مد اصلی ہو جائے گی. بیہی. بیہی پہ یہی کدھر ارنا سے ہاں وقل آمنو بیہی. یہی یہاں پہ اگر دوسرے اگر رکیں گے تو مد وقف کریں گے تو پھر اگر یہاں پہ رک کے وقف کر رہے ہیں تو مد عارض فرعی ہوگا وقفی فرعی ہوگا نہیں ہے ذرا نا. وقف کر کے دیکھیں. بی بی کوئی مد بنی نہیں نہ. تو ایون پھر تو مد اصلی بھی نہیں بنی. ٹھیک ہے. سو مد اصلی بھی نہیں بنے گی وقف کرتے ہوئے. لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو بھی تب پھر مد منفصل ہو جائے مد گی. منفصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کو مد منفصل کیٹیگری میں رکھتے ہیں. یہ جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ہائے ضمیر کا ٹاپک نا ٹھیک اس میں وہ ٹھیک کہیں گے صلہ صغرا صلہ کبرا. لیکن اگر آپ نہ بھی کہیں صلہ صغرا صلہ کبرا تو بھی ٹھیک ہے. مد اصلی مد فرعی اور مد متصل منفصل بولیں تو بھی کوئی ذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مد منفصل ٹھیک ہے. تؤمنو وقف کیا تو تو یہاں پہ بھی مد اصلی مد بنے گا تو مد لازم مد اصلی بنے گا. بس مد اصلی. ٹھیک ہے. مد اچھا اصلی وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی سبب نہ آئے. مد لازم وہ ہے کہ حرف مد کے بعد سبب آ رہا ہو سکون آ رہا ہو. یہاں پہ دیکھیں تؤمنو کیا حرف مد کے بعد کوئی سبب آ رہا نہیں. ہے؟ نہیں آ رہا تو مد اصلی. ٹھیک ہے. اوکے لیکن اگر ملا کے پڑھا تو سب پہ تو یہاں پہ مد اصلی تب بھی آئے گا نا کیونکہ یہاں مد نہیں ہے نا میم. کیوں؟ تؤمنو کے بعد حمزہ نہیں آ رہا دوسرے کلمہ میں؟ تو یہاں پہ مد پھر لگائیں گے ہاں مد منفصل بنے گی. منفصل بنے. ہاں ٹھیک ہے. آپ نا انڈو پاک کے مصحف سے پڑھی ہوں گی. انڈو پاک کے مصحف میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وقف لگا ہوا ہو نا تو وہ مد کا سائن نہیں لگاتے ہوتے. ہاں یہاں نہیں لگا اسی لیے میں کنفیوز ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. سو اچھا حرف تب مد کے بعد اچھا منفصل ہوگا پھر یہاں پہ. منفصل ہوگا. بالکل ہوگا. ان الذین اوتوا العلم او پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ اصلی مد. اصلی مد ہو رہی ہے. شاباش. قبلی ہی پہ وقف کیا تو یہاں پہ مد منفصل کہیں گے اگر یا وقف کیا تو اگر وقف کیا تو مد منفصل. نہ وقف کر کے دکھائیں. اچھا وہ وقف کریں گے تو پھر یہ اصلی مد ہی کہے گا وقف نا. کر کے دکھائیں. قبلی ہاں پہ سکون ہوگا. سو پھر اس کو کوئی مد نہیں کہیں گے. کوئی مد بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. سو کوئی مد بھی نہیں ہو رہی. قبلی ہی ملا کے پڑھا تو تب پھر مد منفصل ہو جائے گی. منفصل. یتلا وقف کیا تو
तब भी ये असली मद ही होगा, और अगर युतला को मिला के पढ़ा तो? युतला अलैहिम, तब भी अच्छा यहाँ पे मैम अलिस असली मद आएगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे जी, असली मद ही होगा ना, युतला को युतला ही पढ़ेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। वक्फ करें चाहे वसल पढ़े, दोनों सूरतों में असली मत है। शाबाश, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह खैर। जी हो गया। ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا متكئ بارك ويخرون. چلیں. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك فلا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تخافت ولا تخافت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكبره تكبيرا الله أكبر. چلیں. ويقولون سبحان ربنا. أم، مد جائز منفصل ده جائز منفصل. اگر وقف کر دیا تو پھر مد اصلی مد اصلی. ان کان پہ وقف کیا تو كان مد عارض وقفی مد عارض وقفی. شاباش. وعد ربنا پہ یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے وقف کیا تو تب بھی مد اصلی تب ہوگی بھی مد اصلی. شاباش. ویخرون وقف کیا تو وَيَخِرُّونَ مد عارض وقفی ملا کر پڑھا تو تو پھر واو مد اصلی مد اصلی. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. وہی بات ہے. الاسماء یہاں پہ مد واجب متصل مد واجب متصل. الحسنى یہاں پہ مد اصلی مد اصلی. ولا تجهر صلاتك یہاں پہ مد اصلی ہو رہی وقف کریں گے تب ہے تب بھی مد اصلی ہوگی شاباش. ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیک. یہ آیات بڑے مزے کی تھی، تلاوت کرتے مزہ آیا. چلیں جی فاطمہ. میں نے یہ جی جی پوچھنا جی ہے کہ آپ نے آپ نے بتایا بے صلاتک، یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا؟ تب بھی مد اصلی بنے گی. دیکھیں بصلاتک. لیکن میں کاف کا تو نہیں تو مد یہ عرض وقفی نہیں ہے؟ نہ کیوں، ہم نے کہا تھا حرف مد کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے، تا تو وقف کریں چاہے وصل کریں، کیا تا ساکن بنے گا؟ نہیں. وہ تو کاف ساکن بنے گا نا. جب وقف کیا تو ہاں بصلاتک کاف ساکن بنا. آپ ساکن، ہاں جی. ٹھیک ہے. تا تو متحرک ہی رہا تو مد اصلی رہے گی. اچھا مد اصلی، ٹھیک ہاں، صرف میم یہ ایسے ہی میرے گھمانے کے لیے کوشچن کیا ہے. تھا. چلیں اچھا.
मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, क्यों बाकी यहाँ की तो ड्रॉप अगर हरकत हो रही है तो फिर मध्य असली क्यों हो रही है? ना ना ना, देखिए हमने पढ़ा हरफ मद के फौरन बाद सुकून आरजी आ रहा हो तो मद आरिज बनती है। अच्छा ओके, अगर इस तरह का तो फिर एक मुतहरिक आ जाएगा तो तब मध्य हाँ असली तो रहेगी। मद असली नहीं बनेगी, क्योंकि जो डिपेंड कर रहा है वो ता पे की हरकत है। अगर ता साकिन होगा तो फिर मद वो बनेगी, मद आरिज अरे बनेगी। ओके, ये ठीक। शायद आपने कल पढ़ाया होगा उसमें, मेरे नहीं ख्याल नहीं, ये से। पढ़ाया नहीं था, ये लॉजिकल कहते हैं ना, कुछ ओके। चीजें लॉजिकल होती हैं। आपने जस्ट इसको सोचना है। हमने क्या पढ़ा कि हरफ मद के बाद सुकून आरजी आएगा तो मद आरिज बनेगी, राइट। जी। तो यहाँ पे हरफ मद के बाद सुकून आरिज तो नहीं आ रहा, यहाँ पे तो ता नहीं। मुतहरिक आ रहा है। आपने वक्फ किया तो काफ पे सुकून आरजी बनी, लेकिन ता हम्म। पे तो नहीं बनी ना। नहीं। तो वो इस वजह से मद असली बनी। अच्छा ओके, अब ठीक समझ है, में आया, तो मतलब इस तरह वैसे जहाँ सैंपल आएंगे तो वो मध्य असली ही मद असली कहलाए। बनेगी। हाँ, वो भी सिर्फ ऐਵੇਂ ही घुमाने के लिए वुमन स्टूडेंट्स की दबाव में बैठा होता है, जब वक्फ करेंगे बाजी जब भी पूछेंगे मद आरिज बनेगी। यही हम भी समझे थे। हाँ ठीक है, तो सिर्फ घुमाने के लिए पूछा था ये क्वेश्चन। ओके, जजाकल्ला खैर, प्लीज। वैयाक। चलिए जी फातिमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. خاكم مجا करेंगे قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. हम्म चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लिल्लाह पे वक्फ कर दिया तो कोई बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? लिल्लाह हरफ मद के बाद सुकून आरिज़ आ रहा है, मध्य आरिज़ मद वक्फी। आरिज़ जी वक्फ बनेगी। ठीक है, हाँ, ये अरबिक मुसहफ का स्टाइल है, वो अल्लाह के ऊपर ना खड़ी जबर नहीं डालता, वो सिर्फ जबर डालता जी है। ठीक है, सो जी अल्लाह अलिफ आ रही है, देखिए अल्लाह ला लाम अलिफ जबर अल्लाह। ठीक है, जी। तो ये मद आरिज़ बन जाएगी, मद आरिज़ वक्फी। अल्लदी यहाँ पे मध्य मुत्सिल नहीं, मध्य मुनफसिल मद वाजिब मुनफसिल। ठीक वाजिब। है, वक्फ किया तो अल्लाज़ी पे हाँ, अल्लदी पे वक्फ कर दिएंगे तो मध्य आरिज़ वक्फी। ना ना, देखें हरफ मद के मध्य बाद क्या? असली, मद सॉरी मध्य असली। असली। शाबाश। अला अब्दिहिल किताब, किताब पे वक्फ किया तो मध्य असली। मद असली। ओ सॉरी, मध्य आरिज़ वक्फी। मद आरिज़ वक्फी। अगर मिला के पढ़ा तो फिर मध्य असली। मद असली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आई वजा। अगर एक तो यहाँ पे हमने वक्फ कर दिया ना, दूसरा यहाँ पे देखिए सीन बना हुआ है सकता। ठीक जी है, तो आप सकता भी कर सकते हैं, यानी आपने पढ़ा आई वजा कय्यिमा, यानी बीच में सांस नहीं तोड़नी, आवाज तोड़ देंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, जी अगर जी वक्त कर लिया तो फिर सकता नहीं बनेगा। जी। अच्छा जी, माँ की तीन पे वक्फ कर देंगे तो मध्य आरिज़ वक्फी। अब अदा पे वक्फ करेंगे तो मध्य असली। मद असली। ठीक हो गया जी साइमा। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम
ما لهم به من علم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم 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 إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا शाबाश चलें जी ما لهم به من علم ولا पे ولا بمدسلي لآبائهم آبا पे مد متصل مد متصل यकूलून पे वक्फ करेंगे तो मद आरिद आरिस की कौन सी किस्म वक्फी वक्फी शाबाश कदिबा पे वक्फ करेंगे तो मदसली ठीक है फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला पे मद मुनफसिल मुनफसिल वक्फ करेंगे तो अला पे अला पे मद असली हाँ जी ठीक है अगर वक्फ करेंगे तो मद असली क्योंकि सबब खत्म हो गया जी चलें बिहादल हदीस हदीस पे वक्फ करेंगे तो यहाँ मद आरिद वक्फी मद आरिस वक्फी ठीक हो गया बारक अल्लाह फीक चले जी सो हम कह रहे थे मद लाज़िम का टॉपिक मद लाज़िम कलमी हमने सारी देख ली थी मद लाज़िम हरफी हम देख रहे थे तो मुझे बताएं मद लाज़िम हरफी की कितनी अक़साम है 3 अक़साम है। 3 अक़साम है मद लाज़िम हरफी की पहली मन्ने मद मन्ने हल लाजिम हरफी मुसक्कल हाँ जी मद हल्फी लाज़िम हरफी मुसक्कल दूसरी मद मद्दे लाजिम लाज़िम हरफी हरफी मुखफ़फ़ मुख़फ़फ़ हल्फी मुखफ़फ़ हरफी मुखाफा और तीसरी मद्दे मन्ने लाज़िम मद लाजिम लाजिम हरफी लीन या हाँ जी मद लीन लाज़िम है लीन बोलना या फिर मद लाज़िम हरफी लीन बोलना दोनों बातें ठीक है अच्छा जी मद लाज़िम हरफी मुसक्कल एक तो हमें ये मालूम है कि मद लाज़िम हरफी होगी सिर्फ किस पे हुरूफ है मुक़त्तआत पे मुक़त्तआत पे होगी ठीक है कहाँ पे होगी मद लाज़िम हरफी सिर्फ मुक़त्ता हरूफ मुक़त्तआत पे हुरूफ मुक़त्तआत पे कौन सा हुरूफ मुक़त्तआत जैसे अलिफ अलिफ लाम लाम मीम काफ है या मीम आइन अलिफ सॉद लाम रा अलिफ लाम रो हाँ आइन मीम स्वाद हम्म ठीक हो गया शाबाश तो ये है मद लाज़िम हरफी जो कि होगी हुरूफ मुक़त्तआत पर उसकी 3 अक़साम है मद लाज़िम हरफी मुसक्कल मद लाज़िम हरफी मुख़फ़फ़ मद लाज़िम लीन या फिर मद लाज़िम हरफी लीन अब मुझे पता है मद लाज़िम हरफी मुसक्कल में क्या होगा हरूफ मद्दा के बाद अरे हरूफ मद के बाद भी नहीं शद्द बाद आएगा हरूफ मुक़त्तआत में हाँ जी हुरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद के बाद तशदीद आ रही होगी मद लाज़िम हरफी मुख़फ़फ़ में क्या होगा हरफ मद के हरूफ बाद मद्दा सुकून के होगा बाद मद्दा के बाद आएगा शाबाश हरफ मद के बाद सुकून लाज़िम आएगा और फिर मद लाज़िम लीन में क्या होगा हर्फ हरूफ लीन आएगा सुकून हर्फ लाजिम मद्दा है आएगा हाँ जी हरफ लीन के बाद हरफ लीन के बाद हरफ लीन के बाद क्या आएगा सुकून सुकून लाजिम आएगा सुकून ठीक है लाजिम मद लाजिम लीन में क्या होगा
حرف لین کے بعد سکون لازم آئے گا. ہاں جی، حرف لین کے بعد سکون لازم آئے گا. اب ہم نے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو سالو کرتے ہوئے چیک کرنا ہے آیا اس میں مد لازم حرفی مثقل ہے یا مد لازم حرفی مخفف ہے یا مد لازم لین ہے. یہ تینوں چیزیں نا اپنے پاس نوٹ کر لیں. زبانی یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نہیں یاد تو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، چیٹنگ کرنا آنی چاہیے. میم پھر سے بولیں گے؟ ہاں، کہ یہ جو تینوں اقسام ہے نا اس کو اپنے پاس ذرا نوٹ کر لیں، چاہے ذہن میں چاہے کاپی پہ. جی. ٹھیک ہے، ابھی جب ہم عملی تطبیق کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ یاد ہونا ضروری ہے کہ مد لازم حرفی مثقل حرف مد کے بعد تشدید، مد لازم حرفی مخفف حرف مد کے بعد سکون لازم، مد لازم لین حرف لین کے بعد سکون لازم. یاد رہے گا؟ میم لکھ کے ہی یاد ہوگا. مد ہاں چلے. لازم حرفی مسکر، مد ہم لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی لین. ہاں جی، اور ان کی میم ڈیفینیشنز اپنے پاس لکھ لیں کہ حرف مد پلس تشدید، حرف مد پلس سکون لازم، حرف لین پلس سکون لازم. یہ لکھ لیں پھر مجھے بتائیں، پھر ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب جو پورے قرآن میں ہمارے پاس حروف مقطعات ہیں وہ کل 14 ہیں. کتنے ہیں ہمارے پاس حروف مقطعات؟ 14. 14. 14. کچھ میں سالو کراؤں گی، باقی سارے آپ نے خود سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس انشاءاللہ. ویکینڈ کا آپ لوگوں کو ہوم ورک کیا کہ کچھ میں سالو کراؤں گی، میں آپ کو سالو کرنا سکھا دوں گی. جی آپ لوگوں نے سالو کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے کہ ہمارا سالو ہو گیا ہے. ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں پہلے نوٹ کر لیں کہ کون کون سے حروف مقطعات. جی. الف لام میم، الف لام میم را، صاد، پھر قاف، پھر نون، پانچ ہو گئے. پھر حامیم، طه، کوئی میں بھول گئی تو مجھے بتا دیجیے گا. یاسین بھی ہے نا میم؟ جی، یاسین، عین سین قاف، الف لام را. یس الف لام. ٹھیک ہو گیا، یہ میں بھول گئی تھی. الف لام را. اچھا الف میم وہ را الف ہے. لام میم را تھا. الف لام را، الف لام را، پھر عین کاف ہا یا عین صاد، کاف. باجی آپ اس کے اوپر شہد وغیرہ نہیں لگائیں گی؟ کیا نہیں لگاؤں گی؟ سوری، مد نہیں لگائیں گی اس نہ، پہ؟ کہاں کہاں وہ بھی مد میں ہے؟ سالو کرتے ہوئے آپ لوگوں کو لگانا سکھاؤں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک کاف ٹھیک. ہا یا عین صاد. ہاں جی، کاف ہا یا عین صاد، پھر طاسین، 12، باجی یاسین کے بعد آپ نے کیا لکھا؟ کاف سین عین سین قاف. عین سین ہاں. اچھا، پھر 13ویں پہ آ جائے گا طاسیم میم. ایک ابھی رہتا ہے، یاد نہیں آ رہا، سوچے کون سا نہیں کیا. میم 10 نمبر میں کیا لکھا ہے؟ 3 نمبر پہ لکھا ہے صاد. کون سا رہ گیا؟ میم یہ خالی توسین. اوکے. ہاں، ایک توسین ہے، ایک توسین میم ہو گیا، ایک رہتا ہے اور. چلیں جی، تو 14 ہو گیا ہمارے پاس الف لام میم صاد. ان سب کو نوٹ کر لیں. ان میں سے کچھ میں کراؤں گی، مجھے بتا دیجیے، بلکہ میں بتا دیتی ہوں کون کون سے میں کراؤں گی، باقی آپ لوگوں نے خود سالو کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی ہم لوگ کو دے دیجیے گا. ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل ایزی آپ لوگوں کے. چلے، ایک میں آپ کو الف لام میم کراؤں گی. ٹھیک ہے. اب الف لام میم میں کرا رہی ہوں تو الف لام میم سے ریلیٹڈ جتنے ہیں، الف لام میم را، الف لام را، یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر صاد میں کرا دوں گی تو اس سے ملتے جلتے جو قاف اور نون ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے. حامیم بھی آپ خود ہی کریں گے. طه چلے میں کرا دوں گی، طه میں کرا دوں گی. ٹھیک ہے. پھر یاسین آپ خود ہی کر لیں گے. عین سین قاف یہ میں کراؤں گی.
फिर काफ या आइन स्वाद मैं भी कराऊंगी और आप लोगों ने खुद भी करना है, ठीक है? जो मैं कराऊंगी वो आप लोगों ने एक दफा खुद भी सॉल्व करना है, ठीक है जी? 11 नंबर मैम आपके ठीक। 11 नंबर, यस। और एक तौसीम मीम मैं करा दूंगी, ठीक है? अब जो रह गए वो आप लोगों ने खुद करने हैं, लेकिन जो मैं कराऊंगी वो भी आप लोगों ने खुद भी करने हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो 1 2 3 4 5, 5 मैं कराऊंगी। 5 नहीं, 6, हाँ 6 मैं कराऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद ही करना है। ठीक इंशाल्लाह। चले नोट कर ले तो बताइएगा। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पहला जो हर्फ मैंने आपको कराना है वो है अलिफ लाम मीम। शो हो रहा है सबको स्क्रीन पे? जी दिख रहा है। जी बस। जी। हाँ। अलिफ लाम, जब भी आपने हुरूफ मुक़त्तात को सॉल्व करना है तो 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। हुरूफ मुक़त्तात को जब सॉल्व करना है तो कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है? 3 3 स्टेप स्टेप। में। 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स में। और ये स्टेप्स लाजिम आपने हर दफा फॉलो करना है जब तक कि आपको पुख्ता नहीं हो जाता। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले हुरूफ मुक़त्तात को ओपन करके लिख लेना है। अलग अलग करके देते हैं। यस, अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है? 3 स्टेप्स अप्लाई करके फिर आपने मत के टॉपिक्स मत अप्लाई करनी होती है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन करके लिख दें। जी। दूसरा स्टेप है कि हरकत डाल दें। नहीं नहीं तो फिर ठीक। दूसरा स्टेप क्या है? एराम लगाना ना, एराब, हाँ हरकत हम डालना। एराम। उर्दू में एराब बोलते हैं, हालांकि एराब नहीं होता, हरकत होता है, ठीक है? एराब लफ्ज ग्रामेटिकली ठीक है, ग्रामेटिकली यूज किया जाता है ये, ठीक है? हम बोलेंगे हरकत, ठीक है? सेकंड स्टेप समझ आया? जी हर कार्ड डाल लेना उसमें। हरकत डाल दें। तीसरा स्टेप कि आपने जितने भी नून साकिन और मीम साकिना के कवायद है पहले उनको सॉल्व करना है। जितने भी नून साकिन और मीम साकिन के कवायद आएंगे पहले उनको सॉल्व करना है। इन 3 स्टेप्स के बाद जाके आपने उस पर अप्लाई करना है कि आया उस पे मद की कौन सी किस्म है, ठीक है? पहले ये 3 स्टेप्स फॉलो ओके। करेंगे, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि मद की किस्म कौन सी है, ठीक है? जब भी हरूफ मुक़त्तात को अच्छा सॉल्व लास्ट पे करेंगे, नून साकिन या। हाँ, कि नून साकिन का कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है, मीम साकिन का कौन सा कायदा, भी मैं ओपन करके दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सो ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर जाके आपने देखना है कि मद की कौन सी टाइप है। डायरेक्ट आप मद पे नहीं जाएंगे हरूफ मुक़त्तात को सॉल्व करने के लिए। हरूफ मुक़त्तात को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसको ओपन करके लिखें, दूसरा स्टेप हरकत डाल दें, तीसरा स्टेप नून साकिन और मीम साकिना के कवायद लिखें, फिर आखिरी दर्जे पे जाके आपने उस पर मद के कायदे अप्लाई करने, बल्कि कह लें 4 स्टेप्स हैं, 3 की वजह 4 कर लें, कि चौथा स्टेप क्या है कि मद की जो कुछ किस्म आ रही होगी उसको अप्लाई करना है, ठीक है? आपने क्या बताया? नून साकन मीम साकन के वायद। हाँ हाँ, नून साकिन मीम साकिन के कवायद अप्लाई करने, और लास्ट पे जाके आपने उस पर मद की जौन सी किस्म लग रही होगी वो बताना है। पहले ओपन करना है, फिर हरकत लगानी है, फिर नून लास्ट में साकिन मद मीम की साकिन के कवायद लिखने इकसाम हैं, बताने। लास्ट में मद की और किस्म फिर है। मत मत का अप्लाई करना है फिर। मद का अप्लाई करना, बिल्कुल। चल नोट कर लिया ये जी 4 स्टेप्स? कर लिया। जी चलें, अब अलिफ लाम मीम है, मुझे बताएं स्टेप्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? अलग अलग गो करके लिख लेंगे। लाम और पहले मीम अलग ओपन अलग करके लिख लेंगे। अलग अलग लिखेंगे। हाँ, उसको ओपन खोल करके कर लिख लूंगी, लिखेंगे। खोल के लिख लूंगी, शाबाश। अब खोल के कैसे लिखना है, ये देखें, अलिफ हमजा लाम लाम। फा अलिफ। फिर लाम कैसे लिखते हैं? लाम अलिफ मीम। अच्छा इस तरह लिखना है। हाँ जी, इस तरह ओपन करके लिखना है, ठीक है? हमें सीधे अलिफ लाम मीम अलग अलग ऐसे लिख दिया। हाँ हाँ, ऐसे करके ओपन करना है, ठीक है? ओके। उसको खोल के लिख लिया, अलिफ हमजा लाम फा लाम लाम अलिफ मीम, फिर मीम मीम या मीम। ओके मीम। ओके। उसके बाद हरकत लगानी है। बिल्कुल, ये कर लिया स्टेप नंबर 1। जी यस जी। मैम। अब स्टेप नंबर 2, हरकत लगा लें। अलिफ, फिर लाम, फिर मीम। लगा ली हरकत भी? जी हाँ हाँ। जी।
मीम अब नेक्स्ट स्टेप, नून साकिन मीम साकिना के कवायद। अब यहाँ पे देखें मीम साकिन कहाँ पे, कहीं पे आ रहा है? लाम में आ रहा मीम है, साकिन लास्ट में आ रहा है और मिड लाम में। में और लास्ट। इदगाम होगा ये। मीम और में। लाम में और मीम में। हाँ मीम जी। में। अब मुझे बताएं, मीम साकिन के बाद जब मीम मुतहरिक आता है तो क्या होता है? इदगाम ना शफ़ी, इदगाम शफ़ी, इदगाम शफ़ी। और इदगाम इदगाम के नतीजे शफ़ी। में हमें क्या चीज मिलती है बदले में? तशदीद। तशदीद मिलती है। तशदीद। तशदीद ठीक इदगाम है, में। जब भी इदगाम होता है तो इदगाम के नतीजे में हमें क्या मिलती है? तशदीद। 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 अच्छा, ये जो दूसरा मीम है, मीम साकिन का मीम, क्या इस पे कोई कायदा अप्लाई होगा? नहीं बाजी। नहीं नहीं, क्योंकि इसके बाद नहीं कोई और बाजी। हर्फ नहीं आ रहा। हम्म, सो अब हमें मालूम ये पड़ा कि लाम, यहाँ पे हमने इदगाम शफवी करना है और इदगाम के नतीजे में क्या पैदा हो गई? तशदीद। तशदीद। अब तशदीद। हमने आखिरी स्टेप पर आना है कि अब मदूद को अप्लाई करें। अब मुझे बताएं, अलिफ, अलिफ पे क्या कोई मद हो रही है? नहीं। नहीं। नहीं नो, बाजी। नहीं। अलिफ पे कोई मद नहीं होती। लाम, हरफ मद के बाद क्या आ रहा है? अस, अलिफ, हाँ, के अलिफ बाद मदा के बाद क्या आ रहा है? ये मीम। तो मध्य फरई हो जाएगा ना, सबब आ रहा है। सबब आ रहा है। मद्दे कौन सा सबब है? लाज़िम। तशदीद आ रहा है, सबब आ मध्य रहा है। फरई, फरई। तशदीद का। तशदीद का। हम्म, हरफ मद के बाद क्या सबब आ रहा है? तशदीद का। तशदीद। हरफ मद के बाद कौन सा सबब आ रहा है? तशदीद का। तशदीद। तो मुझे बताएं कौन सी किस्म बनेगी? मध्य फरई। ना, मध्य फरई है। अब हमने मध्य फरई से आगे निकल गए, अब हम अच्छा, स्टेप्स, ओके। हाँ आपने एक छुट्टी कर ली थी ना। मद्दे मद्दे हरफ लाज़िम मद के हरफ बाद मध्य आता है। मुस्तक़िल। मुसक्कल नहीं, हाँ, मध्य मद, मुस्तक़ल बनेगी ना, मुस्तक़ल। हाँ पूरा ना, मद लाजिम मध्य हरफी बस। मुसक्कल, पूरा मद लाजिम मध्य हरफी लाजिम लाजम मुसक्कल। हरफी मुसक्कल। हरफी मुसक्कल। मध्य लाजिम हरफी मुसक्कल। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया? मुझे स्टेप बताएं, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? यहाँ पे आपने तशदीद लगाई ना, हम्म। ये समझ नहीं आ रहा। क्यों? इदगाम, मीम साकिन के बाद मीम आता है तो कौन सा कायदा अप्लाई होता है? इख्फा शफ़वी। ना, यही तो गलती कर रहे हैं। मीम साकिन के बाद मीम आता है इदगाम। तो इख्फा नहीं होता, इदगाम शफी होता है ना। इदगाम शफ़वी। इदगाम में हाँ लाना जी, मत मिलाते हैं उसमें। बिल्कुल, इदगाम शफी। और इदगाम के नतीजे में हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, क्या पैदा होती है? तशदीद। तशदीद। अब देखें, यहाँ पे पहले मीम साकिन था लेकिन अब यहाँ पे शद लग गई। अब हरफ मद के बाद जब भी शद आती है हुरूफ मुक़त्तआत में, तो कौन सी मद बन जाती है? मद लाजम मद्दे लाज़िम हरफी मुस्तक़िल। मुसक्कल। हाँ जी, साइमा बताएं। जी साइमा, हरफ मद के बाद जब तशदीद आए तो कौन सी मद बनती है हुरूफ मुक़त्तआत में? मद्दे लाज़िम मुस्तक़िल। हाँ पूरा मद लाजिम हरफी मुसक्कल। दोबारा। मद्दे लाज़िम हरफी मुस्तक़िल। अब समझ आया? जी। चल, सो जब, बाजी। जी जी, बाजी हर्फ मद जो है उसके बाद तो मीम साकिन आ रहा है, तो हम उसे ड्रॉप करके नेक्स्ट शद्दा वाले पे कैसे जा रहे हैं? यही तो बता रही हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट इसको करते ना तो आप इसको कह देते मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ कह देते ना। लेकिन आपने जब मीम साकिना के कवायद और नून साकिना के कवायद पहले सॉल्व कर लिए तो आपको मालूम पड़ा कि जब मीम साकिन के बाद मीम आता है तो इदगाम होता है। इदगाम के नतीजे में मुदगम ड्रॉप हो जाता है। हाँ, और हम मुदगम फी पे शट डाल देते हैं। अब देखिए, मुदगम तो बचा ही नहीं ना। जी 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 जी, ठीक है अब जो ठीक है है, सारा ओके। मुदगम फी है। ठीक है, सो मैम तो इदगाम। ये वाला ठीक। खत्म हो गया। हाँ, एक सेकंड साइमा जी, है ना? जी बाजी अब समझ आ गया, क्योंकि आ वो गया। हमने इदगाम किया तो इदगाम के उसमें मीम साकिन ड्रॉप हो गया ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, वो इदगाम के नतीजे में शद बन गई तो वो शॉर्टकट, बस डायरेक्ट शद लगी और हमने इसको मद लाजिम हरफी मुसक्कल कह दिया। ठीक है जी साइमा। क्लियर। ये जो मीम है ना, तो वो मीम खत्म हो गया फिर। यस, इदगाम के मीम नतीजे में साथ। मुदगम खत्म हो जाता होता ना। जी। हाँ जी, सो समझ आया किस तरह बनी मद लाजिम हरफी मुसक्कल? जी अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मीम, मीम पे देखें कौन सी मद हो रही है? हरफ मद की बात क्या आ रहा है? मीम यहाँ है। तशदीद। बाद मीम मीम में, साकिन। मीम में, मीम या मीम साकिन। मीम साकिन। जो साकिन है, साकिन ला, सुकून लाजिम आ रहा है हरफ मद के बाद। सुकून सुकून लाज़िम। सुकून लाजिम आ रहा है तो कौन सी मद बनेगी? मद्दे लाज़िम हरफी मुखफ़फ़। मद मद्दे लाजिम मद्दे हरफी लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़। मुखफ़्फ़फ़। हाँ जी, कुछ समझ आया? यस मैम। बाजी रिपीट कर दें प्लीज।
हाँ कि मीम हरफ मद है, मीम में देखें या मद आ रहा है, जी या मद्दा के बाद मीम पे सुकून आ रहा है, सुकून लाजिम। जी। हाँ जी, तो हरफ मद के बाद जब सुकून लाजिम आएगा तो कौन सी मद बन जाएगी? मद्दे हरफी मुखफ़फ़। लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। हाँ जी, ठीक है। चले अब आप लोगों ने ना अलिफ लाम मीम रा अभी बैठ के सॉल्व करें। चलिए अलिफ लाम मीम रा देखें जरा। स्टेप नंबर 1 क्या है? ओपन करके लिखना। ओपन हाँ करना है। मैं कलर चेंज करूँ। तो सबसे पहले मैंने ओपन करके लिखा अलिफ, फिर लाम। लाम, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जी। जी। जी मीम और रा। रा। ठीक है, अलिफ लाम मीम रा। दूसरा स्टेप क्या है सना? ओपन साथ साथ रहे। हरकत। जी हाँ हरकत हरकत डाल, लगानी है। शाबाश, हमने हरकत डाल दी। अलिफ लाम फिर मीम और फिर रा। ऐसा है, ऐसे ही किया है सबने जी यहाँ तक? जी। जी। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या है? आगे नून साकिन और मीम साकिन का नून पहला साकिन स्टेप मीम करना है। साकिन के कवाइद जो है हम्म, वो करने। हाँ मीम साकिन नून साकिना के कवायद सॉल्व करने हैं। अब देखिए मी लाम, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, जी इमाम जी शफवी। इदगाम शफी होगा, इदगाम के नतीजे में शद बन जाएगी, राइट। जी जी। जी जी। फिर मीम साकिन के बाद रा आ रहा है तो यहाँ अम, इस्लाम बगैर गुन्ना होगा। यहाँ पे एक ये है नहीं नहीं इजहार इदगाम। शफवी। इजहार शफी। इजहार शफ़ी। ठीक है, इजहार शफी। तो उसके नतीजे में कुछ पैदा नहीं होता, तो हम्म। लिहाजा उसको हमने हम्म, छेड़छाड़ी नहीं की, मीम रा हमने सिंपल यहाँ पे इजहार कर देंगे। अब अलिफ पे मुझे बताएं, अब लास्ट स्टेप हमारा, हमने मुदूद को सॉल्व करना है। अलिफ क्या कोई मद हो रही है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसको भी क्या। अलिफ पे कोई मद नहीं है, इतना क्लियर है सना? जी फिर लाम, लाम में देखें अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है, तो कौन सी मद हो जाएगी? मद्दे मद्दे लाजिम मुसक्कल। हरफी मद्दे मुसक्कल। लाजिम हरफी मद्दे मुस्तक़िल। लाजिम हरफी मुसक्कल। मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। फिर मीम या मद्दा के बाद सुकून लाजिम आ रहा है, सना जी कौन सी मद बनेगी? या के बाद मीम आ रहा हम्म, है। हाँ तो कौन सी मद बनेगी? मुखफ़फ़। बिल्कुल, पूरा नाम ले, मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। पूरा नाम ले सना। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। शाबाश। फिर रॉ को देखें, अलिफ मद्दा के बाद क्या कोई सबब आ रहा है? नहीं नहीं, तो कौन सी मद बन जाएगी? मद्दे मद्दे नहीं मद्दे असली। मद्दे असली बन जाएगी, समझ आया? जी हम्म, चले अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व कराना था कॉफ, कॉफ ही कराना था ना, मुझे बताते जाइएगा कौन कौन सा मैंने सॉल्व कराना था, मार्क किया है? जी सॉरी बाजी। किया मैम। हुआ बाजी अरे आपने। फ्रॉड कराना था। बहुत है फ्रॉड है। बाजी। फ्रॉड तो है। चले कराना है। स्वाद और कॉफ और नूनो एक ही बात है। अच्छा अब देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने इसको ओपन करना है। ओपन ओपन करके करना लिखना है। है। ओपन ओपन किया करना तो हमारे पास बना नून, हरकत डाली तो नून पे दम्मा आ गई, वाव पे हम्म, सुकून आ गया और नून पे भी सुकून आ गया। अब यहाँ पे कोई नून साकिन मीम आ गया। साकिन के कवायद अप्लाई हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं। नहीं हो सकते। मैम आप कौन सा करा रही हो? नून। ओह अच्छा, कॉफ से मैं नून पे आ गई। ओह। चले कॉफ, हाँ जी कहाँ आ गई मैं, कॉफ। चले कॉफ में देखिए मैंने हरकत डाल दी, तो अब नून साकिन मीम साकिन के कोई कवायद अप्लाई हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं। तो अब बताएं, हरफे मत की बात सुकून है लाजिम आ रहा है तो मद्दे लाजिम मद्दे लाजिम हरफी मद्दे मुखफ़्फ़फ़। लाजिम लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। हाँ जी सना, समझ आ रही है? सेम होते ही है ना। जी जी मैम ये इजी था। हाँ बिल्कुल, अभी जो मजे वाला तो आएगा ये ना वो जब हम आएगा। जी 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 जी। बाजी एक दफा दोबारा ये से जब बताएं हम प्लीज। हाँ क्या हमने किया, खौफ ओपन करके लिखा, हरकत डाल दी, फिर मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई नून साकिन मीम साकिन का कायदा अप्लाई हो रहा है है ना? नहीं। है नहीं ना? बाजी कोई अप्लाई नहीं हो रहा। कोई अप्लाई नहीं हो रहा, लिहाजा हम आते हैं डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप कहता है हमें मत बता दें कि कौन सी किस्म की नहीं मत। बाजी कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा।
हाँ, तो कौन सी मद कौन सी अप्लाई हो रही है हरफ मद के बाद सुकून लाजिम आ रहा है तो मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मद। हाँ, क्लियर है अब? ये जो जी अभी हम जी। सॉल्व करेंगे बाकी वाले, तो इसमें ये जो ऊपर 3 रूल है बस यही आएंगे हाँ हाँ, या यही और रूल्स भी बार बार आएंगे? रिपीट होंगे। अब देखे ना, मैं कराती हूँ ना, दो तीन क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कलमा मैंने कहा तोहा, मैं सॉल्व कराऊंगी। अब सबसे पहले मैंने इनको ओपन करके लिखा तो और हाँ। अब मुझे बताएं, क्या नून साकिन मीम साकिना का कोई कायदा अप्लाई हो रहा है? नहीं। नहीं। नहीं हो रहा। अब कायदा मुझे बताएं, तो कौन सी मद हो रही है? मद असली। मद असली। मद मदे असली। असली। हाँ, कौन सी मद हो रही है? मद मदे असली। असली। मद मदे असली। असली। मद मदे असली। असली। कुछ समझ आना शुरू हुआ? हम्म अच्छा, और कौन सा मैंने कराना था? स्वाद। हाँ, सौत तो चले, वो आप कॉफ की उसमें कर लेंगे। हाँ, अब मैं कराती हूँ आइन सीन कॉफ। ये बड़े मजे का है, और इससे भी ज्यादा मजे का है काफ हाई आइन स्वाद। अच्छा, अब हमें ना सबसे पहले क्या करना है, इसको खोल के लिखना, ओपन करके। खोल के ओपन लिखना। करना। आइन, स्क्रीन पे मैं लिख रही हूँ, किसी को नजर ना आए तो ढूंढ लेना। सीन, नहीं आ रहा। आप करीब है मेरे तकरीबन, जरा सा अपने नीचे आके देखें। लेकिन वो ऐसे करें तो लाइन पड़ जाती है। कॉफ। ओ, अब आए। हाँ, आइन आइन सीन कॉफ ओपन करके लिख लिया सबने? जी। जी वही। सीन कॉफ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप? हरकत लगानी है। हरकत हरकत। लगानी है। हरकत। आइन ज़बरा या साकिन नून साकिन आइन, फिर सीन सीन जेर सी या साकिन नून साकिन, फिर कॉफ में कॉफ अलिफ ज़बर क और फा साकिन। डाल दिए? जी। मैं जी। सीन पे जेर और या पे। या पे सुकून और नून पे भी सुकून, सीन। ओके। 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 जी। डाली सबने हरकत? जी। जी हाँ जी बाजी सना। डालिए। जी। चले, अब तीसरा स्टेप है नून साकिन और मीम साकिन के कवायद हमने सॉल्व करने। अब नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, तो कौन सा कायदा अप्लाई होगा? इख्फा का। इख्फा ये इख्फा हकीकी। हकीकी। इख्फा हाँ हकीकी। जी, इख्फा हकीकी। फिर सीन नून साकिन के बाद कौफ आ रहा है, यहाँ पे भी इख्फा होगा, इख्फा हकीकी। अगेन इख्फा इख्फा हकीकी। हकीकी। यहाँ पे भी इख्फा हकीकी होगा। चलिए, हमने नून साकिन मीम साकिन के कवायद अप्लाई करके हमें मालूम पड़ा कि तशदीद कहीं नहीं आ रही। हम्म ठीक है, तशदीद कहीं नहीं आ रही। कहीं कहीं नहीं नहीं आ आ रही। अब रही। मुझे पता है आइन, ये कौन सा हरफ मद है, हरफ हरफ लीन। लीन है? हरफ लीन। जालीन हरफ लीन। लीन है। हरफ मदे हरफ लाजिम। लीन। लीन है, ठीक है। हरफ लीन की पहली पहली मिसाल आई है हमारे पास। हरफ लीन के बाद सुकून लाजिम आ रहा है तो मदे लाजिम। लीन के बाद लीन लीन। मुखफ़फ़। हर्फ मद मद्दे लाजिम नहीं लीन। लीन। मद्दे नहीं नहीं लाजिम हरफ लाजिम मद लाजम लीन। मदे लीन। लाजिम हरफे मद्दे लीन। लाजिम लीन। ली। हाँ जी, मदे मद लाजिम लाजिम। हरफे लीन। शाबाश, मद लाजिम लीन बोलना या हरफी लीन बोलना, जैसे मर्जी। ठीक है, सही। मद लाजिम लीन पूरे जो हरफी लीन की ना, यही मिसाल है आइन की। एक काफ हा या आइन साथ में आ रहा है, और एक आइन सीन कॉफ में आ रहा है। ठीक है, मद लाजिम हरफी लीन या मद लाजिम लीन बोलने, ये आइन पे ही होगा। सिर्फ सिर्फ किस पर होगा? आइन आइन पे। पे। आइन पर आइन होगा पर। बस। और आइन दो जगह पर आ रहा है हरूफ मुकत्तआत में, एक आइन सीन कॉफ में और दूसरा काफ आया आइन स्वाद। काफ हा या आइन सौद में। बाद। हाँ जी। चलिए, फिर सीन बताएं। अब आप भी मुझे बताएंगे डायरेक्ट। यहाँ मद पर लाजिम हरफ मुखफ़फ़। मदे लाजिम याय हरफे मद्दा, याय मद्दा। मुखफ़फ़। मुखफ़्फ़फ़। हाँ जी, या मद्दा के बाद सुकून लाजिम आ रहा है, लिहाजा हरफे मद लाजिम। लाजम। हरफे लाजिम। हरफी मुखफ़्फ़फ़। हरफी मुखफ़्फ़फ़। मदे लाजिम हरफे मुखफ़्फ़फ़। चलें जी, तकवीम ये लास्ट वाला कॉफ का तकवीम बताएंगी। कॉफ अली मद असली है या हाँ, हरफ मद के बाद जरूर चेक किया करें सबब है कि नहीं है। सबब नहीं होगा तो मद असली होगी। नहीं? सबब नहीं है मद असली। हरफ मद के बाद सबब नहीं आ रहा, कॉफ फा पे सुकून नहीं, लाजिम नहीं है। होने सुकून लाजिम है। लाजम है। हाँ, तो सबब नहीं आया। मद लाजम हरफी मुखफ़फ़। हाँ जी, ठीक है। कॉफ में अलिफ मदा के बाद सबब आ रहा है सुकून लाजिम, लिहाजा मद्दे लाजिम हरफी मुखाफफ। समझ आया गर्ल्स?
جی यस جی چلیں ابھی بات پریکٹس کی ہاں جی، لیکن آف کرتے ہوتے یہ سب نکل جانا ذہن سے. نہیں تو ابھی ایسا کیجیے گا نا، ابھی ایسا کریں سارے کے سارے حروف مقطعات ایک جگہ پہ لکھیں اور 3 4 کی ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے مشق کر لیں، ٹھیک ہے؟ میں کلاس اینڈ کرتی ہوں، آپ لوگوں نے ابھی ابھی بیٹھ کے نا اس کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟